So guys, hi everybody. So I hope you can hear me and you can see my screen. So please, someone from you, please confirm. Can you see my screen and hear properly? Please let me know. Come on, somebody. Yes, sir. All right. So now, guys, let's start with today's subject. So guys, I'm Sandeep Gupta, Professor Sandeep Gupta, and I'm here to teach you a subject called C programming, which in short is called CP. Earlier, till 2-3 years back, the same subject was called SPA. So if your seniors are calling it SPA, it is basically the same subject in which we are dealing with C programming. But apart from teaching you C programming, I'll also be teaching you C++ programming. Now, let me make one thing very clear over here. Now, some colleges like I think DJ Sangvi or VJTI, they have C++ programming. So please understand one thing, even if you have C++ programming, the first 80%, I repeat, the first 80% of C programming and C++ programming is exactly same. You cannot do C++ programming without doing C programming. So first I'll teach you C language and then I'll also teach you C++. And if you're in those colleges where you have C++ in your syllabus, then for you guys, I will be telling you something extra also. Okay. Anyway, so now let's start with today's session. Now, the first question is what CP contains. So as I already told you, it contains a programming language called C. So the first question which should come in your mind is that what is the meaning of the word programming? So I will say programming is the activity of writing programs. I repeat, programming is the activity of writing programs. So then the next question over here is what is the meaning of a program? Now, over here, how many of you know the meaning of the word program? Come on. On our chat, can you send a message? Just type yes if you know the meaning of the word program. I will not ask you the definition of the program. Trust me, I'll not ask you the definition. But I just want to know that how many of you know the meaning of the word program. So quickly type a yes on the chat if you know the meaning of the word program. Chat means the Zoom chat. Okay, I got one message. Anyone else? Two? Anyone else? All right. So guys, in this group, there are only 2 students who know the meaning of the word program. And here the problem starts. The problem is that you are about to study programming, but you don't even know the meaning of the word program. So first of all, we need to understand what is a program. I assume that your colleges have already started, and I believe कि जो भी तुमको कॉलेज में सिखा रहे होंगे वो शायद तुमको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा. And if you don't understand what is being taught in your college, तो उसका एक ही reason है और वो ये कि they don't teach programming right from scratch. So over here, I'll be teaching you programming right from scratch, from the definition of the program. Okay. So don't worry about anything. If you're completely new to programming, still you'll understand everything. You just have to attend the lectures regularly. Okay. So now I'll dictate the meaning of the word program and you will write it in your notebook. So come on, take your notebook. Okay. Always keep your notebook and a pen or a pencil handy with you. Preferably keep 4 pens with you of 4 different colors: blue, black, red, and green. Why 4 colors? I'll tell you later on. So come on. Give the heading program. And let's write the definition. Right. A program is a sequence of instructions to the computer which reads data, comma, processes this data. Sir, can you again repeat from start? Yeah, I'll repeat again. A program is a sequence of instructions. By the way, just cancel these 3 words, to the computer. I had said to the computer earlier. You can cancel this. I'll add these words in the next line. So I repeat everything again, just check. A program is a sequence of instructions which reads data, comma, processes this data, and gives the desired output.
Full stop. In other words, it is a sequence of instructions to the computer. It is a sequence of instructions to the computer to perform a particular task. Full stop. A program is always written in. A program is always written in programming language. ठीक है, अभी ये डेफिनेशन है ना, इसमें देखो 3 लाइंस है, 3 स्टेटमेंट्स है. ओके, now one by one we'll analyze each statement in great detail. Okay, so Asmi, I can see Asmi over here. Can you read the first statement over here? Come on, Asmi, unmute yourself and read the first statement. Yes, sir. Programming language C. Yeah, no, so read the first statement of the definition. A program is A program is a sequence of instructions which reads data, processes the data, and gives the desired output. Okay, very good. Let's stop worrying. Now, what exactly is the meaning of this? Okay, so to understand this, let's take an example where I don't know how to add two numbers, and I am telling you that give me the sum of two numbers. I repeat, let's say I don't know how to add two numbers, and I am telling you give me the sum of two numbers. Okay, so if I am asking you, please give me the sum of two numbers, what is the first question which you will ask me? By the way, if you want to become anybody can answer. By the way, if you want to become a programmer, the first thing which you should have is common sense. If you don't have common sense, you cannot become a programmer. So once again, my question is, I am asking you, please give me the sum of two numbers. So what is the first question which you will ask me? What are the two numbers? Very good, obvious. So I will give you two numbers, let's say 5 and 6. Okay, I'll give you two numbers, let's say 5 and 6. Okay, in other words, what you are doing over here is you are reading two numbers from me. Okay, so I'll just write over here. So read 5 and 6. तो तुमने मेरे से दो नंबर रीड किया, ठीक है? अच्छा, अब मैंने तुमको दो नंबर्स दे दिया 5 and 6. What is the next thing which you will do in your mind? What is the next thing which you will do in your mind? We will add them. Correct, obviously. देखो कॉमन सेंस यूज करो, प्रोग्रामर बनना है ना, तो बस कॉमन सेंस को यूज करना है. तो in your mind you will add 5 and 6. Now your mind knows that the result is 11. So now will you keep quiet or will you speak out the result? बोलो, will you keep? Yes, you will speak out the result. You will tell me that the result is 11. अभी इधर क्या हो रहा है ना, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो रियलाइज करोगे कि इधर तुमने मेरे से दो नंबर्स रीड किया 5 and 6, और ये प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट. फिर तुमने दो नंबर्स को ऐड किया और ये प्रोसेस को बोलते, और इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग. फिर तुमने मुझे रिजल्ट दिया और इसको बोलते हैं आउटपुट. सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं. इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, 4, 5 and so on. And these instructions, basically what work they will do, they will read some data from you, then they will process that data, and then they will give you the desired result. So we say a program is a sequence of instructions which reads data, processes this data, and gives us the desired result, desired output. Any doubts in this? Sorry. No, sir. Okay. Abhi, I want someone to read the next statement for me. So Darsh, I can see Darsh over here. Can you read the second statement? In other words, can you read the second statement for me, Darsh? Okay, Rahul Deshmukh, can you read the second statement of the definition for me? In other words. Yes, sir. Yeah, read it.
In other words, it is a sequence of instructions to the computer for a particular task. हाँ, अभी एक काम करो, इसमें ना ये अंडरलाइन करो, टू द कंप्यूटर, अंडरलाइन द वर्ड्स टू द कंप्यूटर। ठीक है, नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। मुझे एक बात बताओ, हम जब रास्ते पे जाते हैं तो हमें ना बहुत जगह पे ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वेयर अ सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, ये किसके लिए होता है? टू व्हीलर वालों के लिए या फोर व्हीलर वालों के लिए? फोर व्हीलर। वेयर अ हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग, ये किसके लिए होता है? टू व्हीलर या फोर व्हीलर? टू व्हीलर वालों के लिए। ठीक है, so the point I am trying to make over here is that every instruction is meant for somebody. Okay, so जब हम बोलते हैं ना a program is a sequence of instructions, so these instructions are meant for the computer. तो जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं ना, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि देख कंप्यूटर, तुझको 5 and 6 रीड करना है, फिर देख कंप्यूटर तेरे को 5 and 6 को ऐड करना है, फिर तुझको 5 and 6 अपने मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है या स्पीकर पे बताना है। सो व्हेनेवर यू राइट अ प्रोग्राम, it is a sequence of instructions which you are giving to the computer. The computer will take these instructions and will perform a particular task. So that is basically a program is. Finally, ये definition का जो last line है ना, वो बोलता है कि a program is always written in a programming language. तो इसका क्या मतलब है? Languages like English, Hindi, Marathi, Gujarati are called natural languages. Natural languages are those languages using which we human beings communicate with each other. Okay, if you want to communicate with a computer, then you will have to use a separate category of language, जिसको बोलते हैं programming language. And a program is always written in a programming language. So languages like C, C++, Java, Python are all programming languages using which you can communicate with the computer. Finally, simple शब्दों में अगर मैं कहूँ, so I will say programming is the activity of writing programs, या फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, programming is basically making your computer do some work. So if you want your computer to do some work for you, you write a program. Okay, so this is basically a program and this is the meaning of programming. So I hope everybody understood what is a program, and programming is obviously the activity of writing programs. Any doubts here? Okay, now any doubts? Okay, now very quickly I'll just tell you what all problems you're going to face in this subject. Okay, तो ये सब्जेक्ट का पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इट इज अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, इन अदर वर्ड्स इट इज अ न्यू सब्जेक्ट, एंड एनीथिंग व्हिच इज न्यू इज ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट। हमेशा याद रखना, हर नई चीज तुम्हें तकलीफ देती है। नया जूता हो, नई गर्लफ्रेंड हो, वो नई चीज हमेशा तुम्हें तकलीफ ही देगी। ओके, एज टाइम पासेस, ओके, यू विल गेट यूज्ड टू इट, यू विल गेट मोर कंफर्टेबल विद इट। ओके, सो प्रोग्रामिंग इज अ टोटली न्यू सब्जेक्ट। इनफैक्ट 15 मिनट पहले तक बहुत लोगों को प्रोग्राम का मतलब ही नहीं पता था। Now compare this with a subject like BEE or mechanics, which you had in your semester 1. Mechanics was not a new subject. Okay, the topics in mechanics were new, but mechanics was basically an extension of physics. तुमको पहले से पता था कि फोर्स क्या होता है and speed क्या होती है and all those things. The same goes with BEE, the same goes with mathematics. But programming is a completely new subject, and that is why in semester 2 it becomes the most difficult subject. Many students get 80 in it, and don't forget now you will even have an offline exam. Okay, programming का एक और problem क्या है पता है? In programming, every problem is a new problem. In other words, there are no methods in programming. अब ये जो मैं बोलूंगा ना, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, तो तुमको समझ में आएगा कि प्रोग्रामिंग क्यों डिफिकल्ट है। I have a question for a general question. Anybody can answer. अभी कुछ दिनों पहले तुमने अपना मैकेनिक्स का या BEE का फाइनल एग्जाम का पेपर दिया रहेगा। अब उस पेपर में जैसे ही तुमने कोई प्रॉब्लम को देखा, हाँ, तो सबसे पहले तुम्हारे माइंड में क्या आया? मुझे बताओ, तुम्हारे माइंड ने क्या फिगर आउट करना शुरू किया द मोमेंट यू सॉ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम? टेल मी, कम ऑन, लेट्स हैव अ डिस्कशन, सो यू विल फाइंड द लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग।
तुम्हारे BEE मैकेनिक्स पेपर में जैसे तुमने एक प्रॉब्लम देखा, तुमने अपने माइंड में क्या सोचा, क्या फिगर आउट करने की कोशिश की, बताओ? वो प्रॉब्लम कौन से टाइप का है? वेरी गुड, वेरी गुड। आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड टाइप, कौन से टाइप का है। तो BEE मैकेनिक्स इसमें सब में क्या होता है ना, इवन मैथ्स इसमें सब में क्या होता है कि एवरी प्रॉब्लम फॉल्स इनटू अ पर्टिकुलर टाइप, पर्टिकुलर मेथड। अगर तुमको वो टाइप आता है, मेथड आता है, तो तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो तुमको खाली वो मेथड सीख के जाना है, बाकी तो बस तुम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। एवरी प्रोग्राम इज अ न्यू प्रोग्राम, एवरी प्रॉब्लम इज अ न्यू प्रॉब्लम। जब मैं इधर प्रॉब्लम बोलूंगा आई मीन प्रोग्राम। तो इधर क्या होगा ना कि शुरू शुरू में क्या होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यू विल अंडरस्टैंड ऑल द प्रोग्राम्स व्हिच आई एम टीचिंग, but you will not be able to write a program on your own, and this is very common in programming. इसमें कुछ भी गलत नहीं है। So होता क्या है कि let's say there is a program, write a program to find factorial of a number, write a program to add two matrices. So the logic which we used in the factorial program will not be same as the logic which we use in the matrices program. और इसके वजह से क्या होता है, every problem becomes a new problem and it is very difficult to solve a problem. तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा अगर प्रॉब्लम आ गया जो मैंने नहीं कराया है, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो तुम्हें अगर एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनना है, तो तुमको डेवलप करना पड़ेगा अपना लॉजिक। लॉजिक डेवलपमेंट इज समथिंग व्हिच यू शुड फोकस ऑन। ओके, now over here pay attention to the word development. Okay, there is a difference between the word development and learning. Learning can be done in a specific period of time. यानी अगर तुम सोचो कि हाँ 7 दिन में मैं पूरा सब्जेक्ट कर लूंगा, तुमने समझो सोचा कि मैं 7 दिन में पूरा फिजिक्स पढ़ लूंगा, तो पॉसिबल है। दिन रात तुम फिजिक्स पढ़ो 7 दिन में हो जाएगा, दिन रात तुम केमिस्ट्री पढ़ो 7 दिन में हो जाएगा। बट प्रोग्रामिंग का ऐसा नहीं है। तुमने अगर सोचा कि अरे मैं एक काम करता हूँ, अभी प्रोग्रामिंग करता ही नहीं, फिर लास्ट का जो 8 दिन रहेगा उसमें मैं प्रोग्रामिंग करूंगा और मैं प्रोग्रामर बन जाऊंगा, सो देन तुम्हारी हालत इसके ऐसी हो जाएगी। ओके, will keep breaking your head, but programming तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। So if you want to become a programmer, if you want to develop your logic, you will have to start right now, today itself. Anyway, so these were some of the problems. There are few more problems जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। Now, without wasting any time, what we will do is we'll start with the very first chapter. There are few more problems which I'll tell you later on. Okay, so now come on, give a heading. Okay, so now all right, now let's start with chapter number 1 of our syllabus. So give a heading, chapter number 1, fundamentals of computer programming, and under that give a heading 1.1 computer. Come on, give these headings. Maintain your notebook very nicely. That the more nicely you maintain your notebook, the easier it will be for you towards the end of the semester. Come on, do this. Give all the headings. Chapter number 1, fundamentals of computer programming, 1.1 computer. By the way, on the WhatsApp group, I have given you the notes, the theory notes of the first 2 chapters. And after you guys take the admission, I'll provide you with the notes of the entire subject. Okay. So this week or next week, if you want to study something, you can study from those notes. Theory के लिए मैं notes दूंगा and problems तुम्हारे notebook पे करवाऊंगा. Okay, now under this, let's write a question. Come on, write a question. Right. Write a question. I'll dictate. Right. What is a computer? Explain its various units. Draw its block diagram. I repeat, what is a computer? Explain its various units. Draw its block diagram.
एक छोटा सा आंसर लिखते हैं और उसके बाद विल एनालाइज दिस. कम ऑन, राइट. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक or digital machine which reads data, comma, processes this data and gives us the output. ठीक है. Now, all right. I can see Sapna Bharadwaj over here. Sapna Bharadwaj, can you read this statement which I just dictated? Sapna? Okay, sir. Yeah, read it. Fundamentals of computer programming. हाँ, जो मैंने अभी dictate किया वो read करो. A computer Okay. is the A computer is an electronic or digital machine which reads data, processes this data, and gives us an output. वेरी गुड. सुनो, अभी ये स्टेटमेंट बोलता है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मशीन. तो पहले ना इस बात को समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल का क्या मतलब है. अभी ध्यान से सुनना. बाय द वे एक बात तुमको बताता हूँ. देखो, तुमने 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा कि कंप्यूटर क्या है. ऑलराइट, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द कंप्यूटर, यू नो इट्स यूनिट्स. तो अभी ये मत सोचो कि अरे हम ये सब बेसिक चीजें क्यों पढ़ रहे हैं. हम ये बेसिक चीजें इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज नाउ व्हेन वी आर स्टडीइंग अ कंप्यूटर, we are studying a computer from programming point of view. So unless and until these fundamentals are not clear to you, you will not understand programming. Moreover, जो भी मैं अभी सिखाऊंगा ये सब तुमको वाइवा में पूछा जाएगा, ओरल एग्जाम में पूछा जाएगा. एंड प्लीज ये मत भूलो कि अभी से सब कुछ ऑफलाइन होने वाला है, just like the good old days or bad old days, whatever you want to say. Okay, so that is why all these things are important. Okay, so let's not waste time, let's start. अभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स ना दो तरह की होती है, 2 टाइप्स. एक होती है एनालॉग और दूसरी होती है डिजिटल. एनालॉग एंड डिजिटल. ठीक है, ये होता है एनालॉग और ये होता है डिजिटल. एनालॉग मशीन में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है, जो पावर होता है, आई होप यू कैन सी माई माउस कर्सर. ओके, ये देखो मेरा माउस का कर्सर. अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मुझे प्लीज बोलो. तो एनालॉग मशीन में क्या होता है ना कि ये जो सिग्नल होता है, ये जो पावर होता है, it varies from plus V to minus V. So every analog machine works on a signal, on a power which varies from plus V to minus V. Whereas a digital machine is that machine which works on only, I repeat, only 2 signals, 2 powers, and that is plus V or minus V. इधर देखो बीच में ऐसा डॉट 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 तुमको दिखेगा. यानी जो डिजिटल मशीन है ना, वो प्लस वी और माइनस वी के बीच के सिग्नल को नहीं पहचानता है. इट कैन अंडरस्टैंड ईदर प्लस वी और माइनस वी, नथिंग इन बिटवीन. सो एवरी कंप्यूटर इज बेसिकली अ डिजिटल मशीन which can work either on positive voltage or negative voltage, nothing in between. So computer is also a digital machine. Now if I am teaching you BEE, I repeat, if I am teaching you BEE, तो मैं इसको प्लस वी बोलूंगा, इसको माइनस वी बोलूंगा. बट क्योंकि मैं तुमको प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं ना, तो आज के बाद इसको हम बोलेंगे 1 1 और इसको हम बोलेंगे 0 0. सो आज के बाद हम ये बोलेंगे दैट अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल मशीन व्हिच कैन अंडरस्टैंड ओनली वंस एंड zeros. I repeat, which can understand only ones and zeros. Any doubts in this? No, sir. वेरी गुड. अब हम इसके आगे का डेफिनेशंस पढ़ते हैं. अब मैं डेफिनेशन रीड करता हूं और फिर मैं तुमको कुछ पूछूंगा. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मशीन व्हिच रीड्स डेटा, प्रोसेसेस दिस डेटा एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट. अभी जो आगे का डेफिनेशन था ना, व्हिच रीड्स डेटा, ये वाला, इज दिस डेफिनेशन सिमिलर टू सम अदर डेफिनेशन? इज दिस डेफिनेशन सिमिलर टू सम अदर डेफिनेशन? Yes, sir. कौन सा? Program. बराबर. अब मुझे ये बात बोलो कि ये दोनों डेफिनेशन सिमिलर क्यों है. चलो, अगर तुमने ये आंसर दे दिया ना, इसका मतलब यू आर वेरी अटेंटिव. मेरा जब ऑफलाइन क्लास होता था ना, तो मैं इस आंसर के लिए चॉकलेट देता था. आई नॉर्मली गिव 10 रुपीज चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट इन क्लास फॉर सम क्वेश्चंस. तो ये वो कैडबरी क्वेश्चन था मेरा. तो ये दोनों डेफिनेशन सिमिलर क्यों है बताओ. एंड देन अज्यूम एज इफ आई गेव यू अ कैडबरी.
Come on, take a guess. It's okay if you're wrong. It's better to give me a wrong answer instead of keeping quiet. ये दोनों definition same क्यों है? बोलो, similar क्यों है? Sir, we operate it in computer. क्या? The program is operated in a computer. Yes. देखो, very good. So he gets the chocolate. देखो, अगर तुम प्रोग्राम के डेफिनेशन का सेकंड लाइन देखोगे ना, सेकंड लाइन ऑफ द प्रोग्राम डेफिनेशन, तो उसमें मैंने क्या बोला है? इन अदर वर्ड्स, अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, फिर उसके आगे क्या है जो तुमने अंडरलाइन किया है? बोलो। To the computer. हाँ, टू द कंप्यूटर। तो होता क्या है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि देख कंप्यूटर, तेरे को 2 नंबर्स रीड करने का है। तो कंप्यूटर क्या करेगा? 2 नंबर्स रीड करेगा। फिर हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं, देख तेरे को 2 नंबर्स ऐड करने का है, तो वो 2 नंबर अपने सीपीयू में ऐड करेगा। So whatever you are writing in a program, the computer is doing that same work, and that is why these two definitions are similar. And that is why we say that a computer will first read the data from you, that is input. It will process that data, that is processing, and then it will give you the desired output, yani result. So that is why these two definitions are similar. Any doubts here? No, sir. ठीक है, अभी एक काम करते हैं, कंप्यूटर का ना अलग अलग यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर का इधर एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और उसका यूनिट्स देखेंगे। तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला यूनिट होता है ना, उसको बोलते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट इज दैट यूनिट यूजिंग व्हिच यू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। So come on, give me the simplest example of the input unit. Come on. Mouse and keyboard. Very good. Keyboard is the simplest example, followed by mouse. Many more are there. समझो माइक्रोफोन जो साउंड इनपुट देता है। ये डॉट 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 है ना, इसको बोलते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस का मतलब होता है एटसेट्रा। देयर आर मेनी मोर इन बिटवीन, बट वी आर लिस्टिंग ओनली दीस 3। तो कंप्यूटर का सबसे पहला यूनिट होता है इनपुट यूनिट। जब तुम कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हो तो तुम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हो, उसको कुछ डेटा दे रहे हो। Then the next unit of the computer is called memory unit, which does the work of data storage. It stores data. अब इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को पूरे सिलेबस में काम आएगा, तो प्लीज ध्यान देना। Now I hope you can see this yellow or orange line over here. Okay, this line. अब ये लाइन के ऊपर ना I will develop block diagram of computer, and ये लाइन के नीचे I will develop block diagram of memory unit. I repeat, above this line, I will develop block diagram of computer. Below this line, I will develop block diagram of memory unit. तो अब देखते हैं memory unit क्या है थोड़ा डिटेल में। So the memory unit is basically a sequence of locations. ये दिखता है locations. The memory unit is basically a sequence of locations where each location is called a byte. I repeat, each location is called a byte. Now you may ask me what is a byte. So I will say 1 byte is basically 8 bits. 1 byte is basically 8 bits. So you may ask me now what is a bit? So a bit is either a 1 or a 0. तो बेसिकली इधर है ना, ये लोकेशन पे ऐसा 8 बिट्स होंगे which can be a combination of 1 0. तो इधर होगा 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1, ऐसा sequence of ones and location ones and zeros. So now I'll repeat the definition again and then I'll ask you something. This is the memory unit, which is the sequence of locations where each location is called a byte. 1 byte contains 8 bits and a bit is either a 1 or a 0. तो ऐसा 8 1 zeros रहेगा। ठीक है, अभी मैं तुमको कुछ बताऊंगा और उसके बाद ना तुम्हें कुछ सरप्राइजिंग लगना चाहिए। ओके, क्या सरप्राइजिंग लगना चाहिए देखते हैं, बट अब मैं पहले तुमको कुछ बताता हूँ। सुनो, to understand all this more easily, what I will do is I'll explain you with the help of our cell phone. एक सिंपल बात ये समझो कि अपना जो सेल फोन है ना, वो भी एक मिनी कंप्यूटर ही है। तो जो भी चीज मैं तुमको कंप्यूटर के बारे में बोल रहा हूँ, इट इज ट्रू अबाउट सेल फोन ऑल्सो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सेल फोन में बहुत सारे फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे, ओके, टेक्स्ट मैसेजेस होंगे, वो कहाँ स्टोर्ड है? बोलो, कम ऑन, गिव द आंसर। Internal storage. हाँ, in other words, all these things are present in the memory unit of your cell phone. तो तुम जो बोलते हो ना कि मेरे सेल फोन का मेमोरी 128 GB है या 256 GB है, तो वो जो
128 GB है ना, वो ये मेमोरी यूनिट है, तुम इसकी बात कर रहे हो। और इसी मेमोरी यूनिट में ना तुमने फोटोग्राफ स्टोर किए हैं, वीडियो स्टोर किया है, मैसेजेस स्टोर किया, सब ये मेमोरी के अंदर है, ठीक है। अभी मैं ना दो स्टेटमेंट बोलूंगा, तुम वो दोनों को थोड़ा कोरिलेट करो एंड देन टेल मी व्हाट इज सरप्राइजिंग ओवर हियर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि the memory unit is a sequence of locations where each location is a byte, byte contains 8 bits, a bit is a 1 or a 0, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि inside the memory unit of your cell phone you have stored photographs, you have stored videos, you have stored songs, okay, all these things are stored in the memory unit of your cell phone। अभी इन दोनों बातों को कंबाइन करके तुमको इधर कुछ अजीब, सरप्राइजिंग, स्ट्राइकिंग लग रहा है क्या? सोचो सोचो। So can you repeat? See, I said कि in the memory unit of your cell phone, तुम्हारे सेल फोन में जो 256 GB मेमोरी है, उसमें तुमने फोटोग्राफ स्टोर किया है, वीडियो स्टोर किया है, सॉन्ग स्टोर किया है, ठीक है। फिर मैं ये भी बोलता हूँ कि तुम्हारे सेल फोन का जो मेमोरी है ना, it is basically a sequence of locations where each location is called a byte. Byte contains 8 bits and a bit is either a 1 or a 0. तो मैं ये बोल रहा कि तुम्हारे सेल फोन में ना ये 1s and 0 स्टोर्ड है, ऐसा। तो अभी ये दोनों बातों को जब एक साथ तुम सोचोगे तो तुमको कुछ इधर अजीब लग रहा है क्या? कुछ अनयूजुअल लग रहा है क्या? Program creator. ठीक है, मैं बताता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो क्या है ना, तुमने अपने सेल फोन में अरिजीत सिंह का एक सॉन्ग स्टोर किया होगा, बराबर। बट जब वो सॉन्ग तुम्हारे सेल फोन के मेमोरी में स्टोर्ड है ना, इट इज स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ, आगे बोलो, तुम बोलो, 1 0 ones and zeros, as a sequence. एज अ सीक्वेंस ऑफ ones and zeros। तुमने अपने सेल फोन में कोई फोटोग्राफ स्टोर किया रहेगा, बट जब वो फोटोग्राफ तुम्हारे सेल फोन में स्टोर्ड है ना, इट इज बेसिकली ones and zeros, that's it। So the whole story, the whole moral of the story over here is that whatever is present in your computer, in the memory of your computer, is present as ones and zeros। खत्म बात। ओके, तुम्हारे कंप्यूटर को और कुछ समझ में नहीं आता है, खाली ones and zeros ही समझ में आता है। सो नाउ तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, अरे ऐसा कैसा कि फोटोग्राफ ones and zeros बन जाता है? तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि तुम्हारे कंप्यूटर मेमोरी में जो भी है वो ones and zeros के फॉर्म में है, और वो इस फॉर्म में है बेसिकली। सो दिस इज द मेमोरी यूनिट ऑफ योर सेल फोन, ऑफ योर कंप्यूटर। ओके, आई थिंक आई हैव मेड दिस क्लियर। अब ये ones and zeros में कैसे आता है वो सब बाद में देखेंगे। एनी डाउट्स क्लियर? ठीक है, now let's go back over here, that is No, the sir. block, yeah, thank you, the block diagram of the computer। ठीक है, मेमोरी यूनिट के बाद जो नेक्स्ट यूनिट होता है वो होता है ALU। इसका फुल फॉर्म शायद तुम सबको पता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सो दिस इज द यूनिट वेयर ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर डन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब एंड, और, नॉर, वो सब। एंड और क्या होता है नहीं पता तो ठीक है, बाद में देखेंगे। तो बेसिकली जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होता है वो यहाँ होता है। ALU को कंट्रोल करता है एक और यूनिट जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट ईदर गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू ALU, ये जो एरो है ना, दीज आर इंस्ट्रक्शंस टू ALU, और इट रिसीव्स फीडबैक फ्रॉम ALU। तो सॉरी, तो ये जो एरो है, ये वाला राइट साइड पे जो तुमको अभी दिख रहा है, ये फीडबैक है ALU का। कंट्रोल यूनिट एंड ALU together are called CPU। The full form is Central Processing Unit। तो ये जो रेक्टेंगल है ये CPU है, जिसमें मेनली कंट्रोल यूनिट एंड ALU होता है। अच्छा, अब फिर से वही एग्जांपल लो where you are using a computer to add two numbers। तो चलो फटाफट बोलो, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुमको। If you want a computer to give you the sum of two numbers, तो तुम कंप्यूटर को सबसे पहले क्या दोगे? समझो तुमको एडिशन नहीं आता है, टू नंबर्स, वो दो नंबर तुम कहाँ टाइप करोगे? मॉनिटर पे। हाँ, ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, तो ये देखो, मेरे माउस पॉइंटर को देखो, कीबोर्ड पे समझो तुमने दो नंबर्स टाइप किया। हाँ, तो अभी ये देखो, ये जो दो नंबर्स है वो तुम CPU को दे रहे हो,
तो ये जो एरो दिख रहा है ना, दिस इज द डेटा which you have typed on the keyboard and now it is given to CPU. अभी इधर है ना एक इनडायरेक्ट पाथ भी होगा, ये डायरेक्ट पाथ हुआ, और एक ऐसा इनडायरेक्ट पाथ भी होगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब तुमने कीबोर्ड पे 2 नंबर्स टाइप किया, हो सकता है वो 2 नंबर्स पहले मेमोरी यूनिट में जाएं एंड मेमोरी यूनिट वो 2 नंबर सीपीयू को देगा। तो या तो 2 नंबर्स डायरेक्टली सीपीयू में जाएंगे या फिर पहले इनपुट यूनिट से मेमोरी यूनिट, फिर मेमोरी यूनिट टू सीपीयू। अभी सीपीयू में पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पी ये पी का क्या मतलब है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ना। तो सीपीयू क्या करेगा, ये 2 नंबर्स पे प्रोसेसिंग करेगा एंड उसके पास रिजल्ट आ जाएगा। वो रिजल्ट वो क्या करेगा, या तो मेमोरी यूनिट को दे देगा, मेमोरी यूनिट को दे देगा, या फिर वो जो है रिजल्ट डायरेक्टली आउटपुट यूनिट को देगा। आई रिपीट, फिर से मैं बोलता हूं, सीपीयू के पास देखो ये 2 नंबर्स आ गए, ये एरो को देखो, ये वाला एरो। सीपीयू ने प्रोसेसिंग किया, प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करेगा, जो रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट वापस मेमोरी यूनिट को दे देगा, या फिर वो जो रिजल्ट है ना वो दे देगा आउटपुट यूनिट। अभी आउटपुट यूनिट किसको बोलेंगे? सिंपल, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, इसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ 2 एरोज ओवर हियर। यू हैव टू टेल मी दीस 2 एरोज आर करेक्ट और इनकरेक्ट। बाय द वे एक ऐसी बात बताता हूं, ये जो एरोज तुमको दिख रहा है ना, ये एरो, ये एरो, ये वाला एरो, ये वाला एरो, this all these arrows, they show the flow of data or the flow of result. Okay, so now I am going to draw 2 arrows over here. Tell me these 2 arrows are correct or incorrect. Tell me. Incorrect. They are incorrect. क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो आउटपुट यूनिट है ना, वो डेटा देगा नहीं। ठीक है, मॉनिटर कैन नॉट गिव डेटा टू मेमोरी यूनिट टू सीपीयू, नहीं, मॉनिटर है ना डेटा लेगा। ऑलराइट, सो द करेक्ट एरोज आर दीस। तो देखो अभी ऐसे हो सकता है, क्या हो सकता है, मेरे माउस पॉइंटर को ध्यान से देखना। तुमने कीबोर्ड पे 2 नंबर्स टाइप किया, समझो 5 and 6। वो 2 नंबर्स पहले मेमोरी यूनिट में गया, मेमोरी यूनिट से सीपीयू में आया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग किया एंड जो रिजल्ट है 11, वो सीपीयू ने फिर से मेमोरी यूनिट को दे दिया। फिर मेमोरी यूनिट विल गिव द 2 नंबर्स टू द आउटपुट यूनिट। ऐसे और ऑल दिस कैन हैपन विदाउट द मेमोरी यूनिट आल्सो। तो इनपुट यूनिट ने 5 and 6 सीपीयू को दिया, सीपीयू ने प्रोसेसिंग किया एंड जो रिजल्ट है 11 वो वापस आउटपुट यूनिट को दे दिया। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द कंप्यूटर। अब ये लाइन के ऊपर जो तुमको दिख रहा है ना, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर, और जो नीचे दिख रहा है दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी यूनिट। ओके, ये वाला डायग्राम है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने को बार बार काम आएगा। नाउ यू विल लुक एट द स्क्रीन फॉर few seconds, 3-4 seconds, and उसके बाद मैं स्क्रीन ब्लैंक कर दूंगा and then you will draw this diagram on your own. So come on, do that. Have a look properly, अच्छे से स्क्रीन को देखो, फिर अपने नोटबुक में दोनों डायग्राम्स बनाओ। ऊपर लिखना ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, नीचे लिखना ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी यूनिट। ठीक है, I'll change the screen now. अब खुद से बनाओ ये डायग्राम्स।
ओके, सो दिस वाज द डायग्राम. एक बार देख लो, अगर करेक्शंस करना है तो कर लो. Do the corrections if required. All right. Now give us subheading memory. So till now we were studying about the block diagram of computer. अब जैसे मैंने बोला memory unit ज़्यादा important है, तो हम उसके details में जाएंगे. ठीक है? So give the heading memory. And once again, जो भी मैं memory के बारे में इधर सिखाऊंगा ना, it is true about a cell phone also. Cell phone तुम इनफैक्ट जब मैं सिखाऊंगा ना, think with respect to your cell phone because that way you will understand more easily. ठीक है? So now हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट होता है ना, या मेमोरी जो होती है, वो तीन तरह की होती है. इट लाइज इन थ्री कैटेगरीज. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी. सेकंड इज रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. और थर्ड होती है सेकेंडरी मेमोरी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद रोम. अब जैसे इसका नाम ही बोल रहा है, रोम इज दैट मेमोरी ऑन विच ओनली रीडिंग इज अलाउड, राइटिंग इज नॉट अलाउड. अभी ये पूरे स्क्रीन पे जब भी मैं रीडिंग बोलूंगा ना, सॉरी, जब भी मैं राइटिंग बोलूंगा ना, राइटिंग का मतलब होता है स्टोरिंग. सो रोम इज दैट मेमोरी ऑन विच यू cannot store your data, you cannot store your photographs or whatever. No, although you can read the contents of ROM. read का मतलब उसमें जो already stored है उसको तुम fetch करके use कर सकते हो, but you cannot store anything on ROM. Moreover, ROM is used only for storing that data which is permanent in nature. अब इसका क्या मतलब है कि it stores only permanent data? तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एंड दैट एग्जाम्पल इज ऑफ मॉनिटर प्रोग्राम. ओके, अभी क्या होता है ना, जब तुमको अपना लैपटॉप ऑन करना है, ओके, तो तुम लैपटॉप का पावर बटन ऑन करोगे. हाँ, अब जब तुम पावर बटन ऑन करोगे तो लेट्स से 10 सेकेंड्स के बाद, 15 सेकेंड, या जैसे पावर बटन ऑन करोगे पहले पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आएगा, तो तुम पासवर्ड एंटर करोगे. पासवर्ड एंटर करने के बाद तुमको ये ऐसा डेस्कटॉप दिखाई देगा. आई एम पर्पसली शोइंग यू दिस डेस्कटॉप. ओके, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना. तुमने पावर बटन ऑन किया, ओके, पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आया, तुमने पासवर्ड टाइप किया, फिर उसके 5 सेकंड के बाद, 3 सेकंड, 5 सेकंड के बाद ये पूरा डेस्कटॉप आएगा. ठीक है? तो ये जो 3 सेकंड का टाइम होता है, ओके, द टाइम वेयर यू हैव फिनिश टाइपिंग योर पासवर्ड एंड यू सॉ दिस डेस्कटॉप इन फ्रंट ऑफ यू, जो अभी तुमको दिख रहा है. ठीक है? तो ये जो 3-4 सेकंड का टाइम होता है ना, इसमें ये टाइम में पीछे तुम्हारा मॉनिटर प्रोग्राम काम करता है. ओके, आई होप यू हैव हर्ड दिस वर्ड बूटिंग द कंप्यूटर. तुमने वर्ड सुना रहेगा, बूटिंग द कंप्यूटर. बूटिंग, तो बूटिंग का बेसिकली मतलब होता है स्टार्टिंग द कंप्यूटर. ओके, सो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे ही तुम अपना पावर बटन ऑन करते हो ना, पावर बटन ऑन करते हो ना, वो मॉनिटर प्रोग्राम एक्शन में आता है. ओके, ये जो मॉनिटर प्रोग्राम है ना, ये एक्शन में आता है. एक्शन में आके सबसे पहले तुमको पासवर्ड पूछता है. पासवर्ड पूछने के बाद ये तुमको 3 सेकंड के बाद तुमको डेस्कटॉप दिखाता है. तो ये पूरे प्रोसेस में ना, द मॉनिटर प्रोग्राम इज बेसिकली वर्किंग इन द बैकग्राउंड, एंड इट इज अ मॉनिटर प्रोग्राम बिकॉज ऑफ विच योर कंप्यूटर हैज स्टार्टेड. सो नाउ आंसर अ सिंपल क्वेश्चन. Is this monitor program of temporary nature or permanent nature? बोलो, simple question. परमानेंट नेचर. Permanent nature. तुम्हारे कंप्यूटर में अगर कोई एक फोटोग्राफ नहीं है तो तुम्हारा कंप्यूटर को से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी काम करेगा. बट अगर तुम्हारे कंप्यूटर में मॉनिटर प्रोग्राम नहीं है तो तुम्हारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा. तो ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं which are critically important for a computer, they are stored in ROM. क्या होता है ना, जिस फैक्ट्री में कंप्यूटर बनता है, जहां कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां ध्यान से सुना, उस फैक्ट्री में द मॉनिटर प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन द रोम फॉर द मॉनिटर प्रोग्राम नहीं बोलूंगा, फिर से बोलता हूं पूरा स्टेटमेंट. जिस फैक्ट्री में तुम्हारा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होता है,
उस फैक्ट्री में the programs and the data are stored on the ROM for the first and the last time using some laser techniques. So using some laser techniques, the programs, the data are stored on the ROM in the factory. और उसके बाद वो डेटा को तुम हाथ नहीं लगा सकते, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते. So this is what a ROM is. It is used only for reading. Reading का मतलब है उसमें जो डेटा स्टोर्ड है वो तुम फेच कर सकते हो, उसको तुम देख सकते हो क्या डेटा है, बट तुम अपना खुद का डेटा तो स्टोर नहीं कर सकते. Okay, any doubts about ROM? The next memory is called RAM, also called random access memory, and sometimes also called the main memory of the computer. तो main memory ये RAM को ही बोलते हैं. On the RAM, writing is allowed. That means you can store the data on RAM. You can store your photographs on RAM. But RAM is volatile in nature. अच्छा मुझको बोलो सिंपल इंग्लिश में या केमिस्ट्री में वॉलेटाइल का क्या मतलब है? वॉलेटाइल केमिस्ट्री में या इंग्लिश में क्या होता है? बोलो. सो वॉलेटाइल, हाँ बोलो क्या होता है? सो वॉलेटाइल का मतलब होता है समथिंग विच इवेपोरेट, समथिंग विच इवेपोरेट, इसको वॉलेटाइल बोलते हैं. अभी यहाँ वॉलेटाइल का क्या मतलब है? अगर मैं बोलता हूँ रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हारे कंप्यूटर में पावर है, as long as power is on in your computer, data will be present in the RAM. जैसे पावर ऑफ हो गया, जैसे तुमने अपना लैपटॉप सेल फोन बंद कर दिया, रैम के अंदर जो डेटा है वो उड़ जाएगा. ऐसे तो हम बहुत बार बोलते हैं ना, अरे मेरा डेटा उड़ गया, तो बेसिकली वो इसलिए उड़ गया क्योंकि वो वॉलेटाइल था, वो रैम में टेम्पररी स्टोर था. सो रैम इज वॉलेटाइल इन नेचर. जब तक पावर ऑन है डेटा रहेगा, पावर ऑफ डेटा उड़ जाएगा. नाउ लेट्स कम टू सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी समझाने के लिए ना मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं एंड तुमको इजीली समझ में आ जाए. ओके, सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल्स है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सो ऑन. अब मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो. तुम्हारे पेन ड्राइव में तुमने जो भी फोटो स्टोर किया है वो परमानेंटली उधर रहता है, टेम्पररी रहता है? परमानेंटली. हाँ, एक मिनट, परमानेंटली से मेरा मतलब है जब तक तुम डिलीट नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं परमानेंट. टेम्पररी का मतलब पावर ऑफ, तो डेटा उड़ गया, उसको बोलते हैं टेम्पररी. हाँ, तो फिर से टेम्पररी या परमानेंट? टेम्पररी या परमानेंट? परमानेंट. ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इट इज ऑब्वियसली नॉट वॉलेटाइल. ओके, ये तो ऑब्वियस है. तुमने अपने सेल फोन में जो भी स्टोर किया है, कंप्यूटर में जो भी स्टोर किया है, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलूंगा ना ध्यान से सुनना, तुमने अपने सेल फोन एंड कंप्यूटर में जो भी स्टोर किया है ना वो तुमने हार्ड डिस्क में स्टोर किया है. तुम जो बोलते हो ना कि मेरी सेल फोन की मेमोरी 128 GB है, तो वो तुम हार्ड डिस्क के बारे में बोलते हो. ओके, तो ये जो 128 GB मेमोरी है ये नॉन वॉलेटाइल है एंड दैट्स व्हाई इवन इफ द सेल फोन इज ऑफ, योर डेटा विल स्टिल बी प्रेजेंट ओवर देयर. So these are the three types of computer memory. Any doubts about any of them? कुछ भी doubt है तो पूछो. Any doubt? Sorry, any doubt? Okay, एक काम करो, इसको quickly copy करो. Come on, copy this as it is. Quick. लिखते वक्त ध्यान दो क्या लिख रहे हो, तो it will be a revision for you. Sorry. ओके, अब
अभी नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लो। प्लीज स्क्रीनशॉट लेना सीख लो अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, बिकॉज मेनी टाइम्स वो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर कॉपी नहीं किया तो। लेट्स मूव फर्दर। नाउ write a question, right? Compare main memory and secondary memory. Compare main memory and secondary memory. तुम्हारे ओरल एग्जाम में, तुम्हारे वाइवा में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा, बाय द वे आई होप यू मस्ट बी नोइंग कि ओरल एग्जाम में एक इंटरनल एग्जामिनर होता है जो तुम्हारे कॉलेज का होता है, एक एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है। ऑलराइट, तो तुम्हारे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होगा ही में आस्क यू दिस क्वेश्चन, ये एक फेवरेट क्वेश्चन होता है उनका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो सबसे पहले मेन मेमोरी रैम को बोलते हैं एंड सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी एंड सो ऑन। वैसे हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव और मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि हम आजकल वही यूज करते हैं। अच्छा, अभी बोलो दोनों में पहला डिफरेंस क्या है? तुमको ये ऑलरेडी पता है, बोलो क्या है पहला डिफरेंस? Come on. Main memory is Permanent and volatile. permanent and volatile and non-volatile. Main memory का मतलब RAM, which is volatile. Volatile and is non-volatile. ठीक है, तो ये तो तुमको पहले से पता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बोलूंगा डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। ये तुमको नेक्स्ट लेक्चर याद रखना है, ठीक है? यू हैव टू रिमेंबर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Main memory has low access time and secondary memory has high access time. I repeat, main memory has low access time and secondary memory has high access time. अभी इसका क्या मतलब है? तो ये समझने के लिए ना, let's go back to this diagram of the computer. ठीक है, हम है ना ये वाले एरो की बात करते हैं, ये वाले एरो, ये ठीक है। अभी ये जो एरो है ना, ये वाला एरो, दिस एरो शोज द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट टू सीपीयू। in other words over here the CPU is accessing the data which is in the memory unit. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो मेमोरी यूनिट है ना, ये तीन टाइप्स का होता है। तो रोम को तो तुम छोड़ दो क्योंकि रोम में तो तुम कुछ अपना खुद का स्टोर नहीं कर सकते हो। अभी समझो ये जो मेमोरी यूनिट है ना, ये है रैम। आई रिपीट, ये है रैम, और इसमें कुछ तो डेटा स्टोर्ड है एंड यू आर ट्रांसफरिंग दैट डेटा फ्रॉम रैम टू सीपीयू। Now, if you are transferring that data from RAM to CPU, तो समझो ये डेटा ट्रांसफर होने में, समझो लगता है 2 milliseconds. I repeat, this is RAM. There is some data in the RAM. This data is being transferred from RAM to CPU, and let's say that transfer time is 2 milliseconds. Okay. Now, let's say this memory unit is not RAM. Let's say it is hard disk. It is secondary memory. Okay. Let's say the same data which was there in RAM, it is present in this hard disk, and we are transferring this data from this hard disk to CPU. And now let's say that the time required is 5 milliseconds. तो मैंने क्या बोला कि अगर RAM है, मैंने दोनों हाथ को देखो, अगर RAM है तो RAM से CPU जाने में जो टाइम लगता है वो है 2 milliseconds, और वही डेटा अगर सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में है, तो सेकेंडरी मेमोरी से CPU जाने में लगता है 5 milliseconds. तो टाइम किसमें ज्यादा लग रहा है, रैम टू सीपीयू या हार्ड डिस्क टू सीपीयू? बोलो। हार्ड डिस्क टू सीपीयू। हाँ, तो हम ऐसा बोलेंगे कि रैम हैज लो एक्सेस टाइम। दैट मींस द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस रैम इज लोअर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस हार्ड डिस्क। ये वो पॉइंट है। तो अब क्विकली मुझे बोलो, क्योंकि तुमने मैकेनिक्स पढ़ा है, हु विल बी फास्टर, रैम और हार्ड डिस्क? RAM. टाइम कम यानी वो ज्यादा फास्ट। ऑलराइट, सो द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम इज लोअर देन द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द सेम डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो ये वो पॉइंट है, लो एक्सेस टाइम, हाई एक्सेस टाइम, या फिर तुम इधर ये भी लिख सकते हो फास्टर, स्लोअर। जो तीसरा डिफरेंस है वो कमर्शियल डिफरेंस है, और वो ये कि रैम इज मोर कॉस्टली एंड हार्ड डिस्क इज लेस कॉस्टली। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सेलफोन में हार्ड डिस्क कितना है? हार्ड डिस्क यानी जो तुम बोलते हो ना 128 GB, 250 GB, कितना है? चलो तुम्हारे सेलफोन में बोलो, या कंप्यूटर में बोल दो, जो भी पता है बोलो। कम ऑन।
तुम्हारे लैपटॉप में या तुम्हारे सेल फोन में कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, कितना जीबी है बोलो, कम ऑन समबडी, अरे सेल फोन का तो बोलो कितना है। तो अगर तुम सेल फोन की बात करो ना, तो तुम्हारे सेल फोन में जो मेमोरी रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगा, वो समझो रहेगा 128 जीबी या 256 जीबी। बट उसी सेल फोन में जो रैम रहेगा ना, वो होगा 8 जीबी। तो क्या होता है ना, रैम का जो पर जीबी कॉस्ट है ना, इट इज मच मोर देन द हार्ड डिस्क। यानी ये जो 8 जीबी का रैम है एंड ये जो 128 जीबी का हार्ड डिस्क है, दोनों का प्राइस सेम होता है। सो अगर तुम पर जीबी पकड़ो, पर जीबी, तो इसका कॉस्ट ज्यादा होता है। सो कमर्शियली रैम इज मोर कॉस्टली, दिस इज लेस कॉस्टली। एनी डाउट्स अबाउट दीज पॉइंट्स? ठीक है, ये कॉपी करो और इधर तुम ऐसा भी लिख सकते हो, फास्टर स्लोअर। कम ऑन, कॉपी दिस। Come on, copy this quickly. Okay, take a screenshot if you haven't copied. All right, now let's move on to the next topic. Give the heading 1.2 programming languages. Come on, give the heading 1.2 programming languages. ठीक है, अब इसका बिगिनिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनना। Now, under this topic, we are going to study 3 categories of programming languages. I repeat, 3 categories. Okay. The first category is called machine language. Second है assembly language, and third है high level language. Okay. But before we talk about these 3 categories, let's talk something in general. तो अब जो मैं तुमको बोलूंगा ना, it is in general about all programming languages. Okay, सुनो। तो पहली बात तो क्या है ना कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल कंटेन सम सिंबल्स। अब सिंबल का मतलब क्या? सिंबल का मतलब ABCD, वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो, इसको मैं सिंबल्स बोल रहा हूँ। तो तुम कोई भी लैंग्वेज की बात करो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो या नेचुरल लैंग्वेज की बात करो, जिसमें हम बात करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सिंबल्स होगा, ऑब्वियस है। मशीन, दूसरी जनरल बात ये है कि जो मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, these are categories of programming languages, they are not names of languages. हाँ, ठीक है। तो जैसे मैं बोलता हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, बट जब मैं बोल रहा हूँ मशीन लैंग्वेज, तो ये कैटेगरी है, ये तुमको समझना है। ओके। तीसरी बात ये कि एवरी प्रोग्राम बेसिकली कंटेन सम स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस। तो जब तुम प्रोग्राम लिखते हो, उसमें कुछ तुम स्टेटमेंट्स लिखोगे, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखोगे। ऑलराइट, तो ये तीनों बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, अब तुमको 2 मिनट में समझेगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ओके, नाउ मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड इन 1960s, अराउंड 1960 1965। देन उसके बाद 1970 ऑनवर्ड्स आया असेंबली लैंग्वेज, एंड 1980 ऑनवर्ड्स या 1975 ऑनवर्ड्स आया हाई लेवल लैंग्वेज। तो अभी आप लोग को समझने का ये तीनों चीज क्या है, तो ध्यान से सुनना। मशीन लैंग्वेज कंटेन्स ओनली 2 सिंबल्स एंड दीज 2 सिंबल्स आर वंस एंड जीरोस। तो इसका मतलब क्या, थोड़ा देखो ध्यान से सुना, ये कुछ बहुत सरप्राइजिंग बात है। मशीन लैंग्वेज कंटेन्स ओनली 2 सिंबल्स एंड दीज 2 सिंबल्स एंड वंस एंड जीरोस। तो इसका मतलब क्या कि अगर तुम मशीन लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट लिखना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो दैट स्टेटमेंट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस। ऐसा, so for example, this could be a statement for adding 5 and 8.
This could be a statement for subtracting 2 from 9. This could be a statement for multiplying 7 and 4. ऐसा तो मशीन लैंग्वेज में तुम जो भी स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी प्रोग्राम लिखोगे, उसमें तुमको दो ही सिंबल दिखेगा और वो दो सिंबल होगा 1 and 0. तो अब तुम मुझको एक बात बताओ, राइटिंग अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज was a tedious task or a simple task? Tedious मतलब difficult. Writing a program in machine language was a difficult task or a simple task? बोलो. Difficult. Very difficult task. क्यों? Because you will have to remember each and every sequence of ones and zeros. तुमको याद रखना पड़ेगा. अरे ये जो है ना, ये ना 7 and 8 को ऐड करेगा. अरे ये जो है ना 2 and 9 को सब्ट्रैक्ट करेगा. अरे ये ना डिवीजन करेगा. ऐसा. तो writing a program in machine language was horribly difficult. Now machine language has two disadvantages. एक तो ये है कि writing a program in machine language is difficult. But जो दूसरा disadvantage है ना, वो और भी important है, थोड़ा difficult है समझना, इसे ध्यान से सुनना. दूसरा disadvantage ये है कि machine language is machine specific. Machine language is machine specific. अभी इसका क्या मतलब है? मशीन लैंग्वेज इज मशीन स्पेसिफिक, इसका क्या मतलब है? तो ये समझते हैं. ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट टुडे. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट टुडे. अभी समझो तुम्हारे पास एक HP का कंप्यूटर है और तुम्हारे फ्रेंड के पास एक डेल का कंप्यूटर है. ठीक है, अब तुमने अपने HP के कंप्यूटर में समझो एक C प्रोग्राम लिखा टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. तुम्हारे HP के कंप्यूटर में तुमने एक C प्रोग्राम लिखा टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. दिस प्रोग्राम, लेट्स से इट वर्क्स परफेक्टली ऑन योर कंप्यूटर. आई रिपीट, लेट्स से इट वर्क्स परफेक्टली ऑन योर कंप्यूटर. तुम्हारे कंप्यूटर पे समझो एकदम अच्छे से काम कर रहा है. ठीक है, अभी ये प्रोग्राम तुमने अपने HP के कंप्यूटर पे रन किया, तुमसे वो 2 नंबर मांगेगा, उसका रिजल्ट वो तुमको दे देगा. ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, समझो तुमने ये प्रोग्राम पेन ड्राइव में लिया और ये सेम C प्रोग्राम तुमने ये डेल के कंप्यूटर पे कॉपी किया. ये सेम C प्रोग्राम तुमने डेल का कंप्यूटर पे कॉपी किया. नाउ माय क्वेश्चन इज, दिस C प्रोग्राम व्हिच वर्क्स ऑन योर HP कंप्यूटर, will it work on your friend's Dell computer? Come on, take a guess. It's okay if you're wrong. It's okay if you're wrong. जो प्रोग्राम तुम्हारे HP के कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वो तुम्हारे फ्रेंड के डेल कंप्यूटर पे काम करेगा क्या? Yes or no? Yes. Yes. The answer is a clear yes. वो काम करेगा. And अगर वो काम करेगा ना, तो इसका मतलब the C program is not machine specific. It is machine independent. It is not machine dependent. अब इसका क्या मतलब है तो समझते हैं. ये जो HP का कंप्यूटर है और ये जो डेल का कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर्स ही हैं, बट दोनों का जो इंटरनल मशीनरी है, दोनों का जो इंटरनल सर्किट्स है, उसमें देखो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहेगा ही ना. एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता है. So the internal architecture of this machine, when I say machine, I mean the computer, I mean the processor. Okay, so the internal architecture of this machine and this machine will not be exactly same. It will be slightly different. Okay, same नहीं होगा, अलग होगा वो. ठीक है, but in spite of that, this C program which works on HP also works on Dell. इसका मतलब ये जो C programming language है ना, वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है. ओके, ऐसा नहीं कि वो एक मशीन पे चलेगा दूसरे पे नहीं चलेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन, ऑफ द कंप्यूटर ऑन व्हिच यू आर यूजिंग इट. सो एज ऑफ टुडे ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट. दे आर नॉट मशीन स्पेसिफिक. बट 1970s में क्या होता था ना, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते थे ना, वो मशीन स्पेसिफिक होते थे. इसका मतलब समझो एक HP का कंप्यूटर है, हाँ, उस पे तुमने एक प्रोग्राम लिखा इन मशीन लैंग्वेज, तो तुम ऐसा बोलोगे 100110001 ऐसा. ठीक है, now let's say this instruction does the work of adding 2 and 3. It does the work of adding 2 and 3. अब ये सेम इंस्ट्रक्शन तुम अगर इधर लिखोगे, डेल के कंप्यूटर पे लिखोगे, तो वो काम नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि जो डेल का कंप्यूटर है ना, उसका अपना खुद का मशीन लैंग्वेज होता था, इसका अपना खुद का मशीन लैंग्वेज होता था.
So this instruction which works on HP will not work on Dell. So we say that a machine language is machine specific. That means it will specifically work on one particular machine. तो तुमको अगर सच में समझ में आया तो बोलो जो मशीन स्पेसिफिक नेचर है ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर एक कंप्यूटर पे लिखोगे दूसरे किसी और कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा। तो समझो आज भी अगर हम 1960s में है, ओके, तुमने समझो एक प्रोग्राम लिखा बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा मशीन लैंग्वेज। कल को अगर तुम कंप्यूटर चेंज कर देते हो तो तुमको प्रोग्राम फिर से कोड करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो दीज आर द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज। बट मशीन लैंग्वेज का एक एडवांटेज भी था जो तुमको समझेगा नहीं, तो इसको भी रट लो, बाय हार्ट कर लो, और वो ये कि द मशीन लैंग्वेज वाज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अभी इसका क्या मतलब है ना, ये तुमको नेक्स्ट लेक्चर में समझेगा। तो खाली हो सकता है याद रखना कि मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ओके, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग नाउ। Now let's move further. अब तुमको सब सिंपल लगेगा। अच्छा, आई होप तुमने ये हेडिंग दिया है। अंडर दिस ना खाली ये हेडिंग दे दो, नंबर 1 मशीन लैंग्वेज। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज। बाय द वे जो भी मैंने सिखाया ना, मैंने पूरा डिटेल्ड ये सब डिटेल्स ना मैंने थियोरी नोट्स में दिया है। तो आफ्टर द लेक्चर ये पूरे वीक में थोड़ा इसको एक बार रिवाइज करना। इफ यू आर न्यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप तो मैं थियोरी नोट्स फिर से पोस्ट करूंगा। ठीक है, नाउ गिव द नेक्स्ट हेडिंग नंबर 2 असेंबली लैंग्वेज। ऑलराइट, अब असेंबली लैंग्वेज क्या है ना ये समझते हैं। सो असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड इन 1970s एंड असेंबली लैंग्वेज कंटेन्स निमोनिक्स। बाय द वे जो एम है ना ये साइलेंट है, तो हम बोलेंगे निमोनिक्स। अब तुम बोलोगे निमोनिक्स का मतलब क्या? सो निमोनिक्स आर स्मॉल सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड्स। अब असेंबली लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होता था ना वो ऐसे होता था, ऐड 5 6, सब यानी सब्ट्रैक्ट 7, 8। अभी इधर है ना ये जो ऐड है ना वो एक निमोनिक है, ये जो सब है ना ये भी एक निमोनिक है। इट इज अ स्मॉल सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड व्हिच विल इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू डू सम वर्क। अब तुम मुझको एक बात बोलो, राइटिंग अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इज टीडियस और नॉट टीडियस? तुम बोलो। नॉन टीडियस। It is not tedious because you have these mnemonics. But assembly language is also machine specific. अब तुम बोलोगे मशीन स्पेसिफिक कैसे हुआ? तो क्या होता है ना, समझो तुम्हारे पास HP का कंप्यूटर है इन 1975, तो उस पे जो असेंबली लैंग्वेज होगा ना वो ऐसा होगा, ऐड 5 6। बट डेल के कंप्यूटर पे अगर तुमको यही एडिशन करने का है ना तो शायद वो ऐसा होगा, ऐड 5 6। इसका मतलब द निमोनिक्स which were used by HP and the mnemonic which was used by Dell is not same. So that is why the assembly language was also machine specific. ठीक है, but it was not tedious. I think ये simple था। अभी 1975 onward, 1980s onwards जो next category आया वो आया high level language, and as of today all the languages are high level languages. C, C++, Java ये सब high level languages है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो स्टेटमेंट्स होता है, दे आर मोर लाइक इंग्लिश, दे आर मोर लाइक मैथमेटिक्स। अब जैसे ये है ना, ये एक सी लैंग्वेज का स्टेटमेंट है। तुम बोलो स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है? कम ऑन बोलो, फटाफट बोलो क्या काम कर रहा है स्टेटमेंट? बोलो ये स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है? A plus B is denoting X. हाँ, A and B is added and the result is stored in X। ठीक है, तो देखो तुमको सी लैंग्वेज नहीं पता बट फिर भी तुमने मुझे बता दिया कि ये क्या काम कर रहा है, which means that this high level language C language is not tedious। okay, यानी इसके प्रोग्राम लिखना tedious नहीं है, लॉजिक डेवलपमेंट वो अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें प्रोग्राम यानी स्टेटमेंट्स का मतलब समझना वो इजी है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, moreover the high level language is not even machine specific। जैसे मैंने तुमको ये एग्जांपल दिया था ये वाला, it is not even machine specific। So now, as of today, we all use the high level language, and in this particular syllabus, we'll be using the high level language called C language. Okay? So any doubts in machine language, assembly language, high level language? No, sir.
ठीक है, ये हेडिंग दे दो नंबर 3 हाई लेवल लैंग्वेज. Okay, now give a heading 1.3 program or software. ठीक है. Under this topic, we'll be studying some important programs, important softwares which will help you in your programming. अभी सबसे पहले सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, तो मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना. सिंपल सिंपल बातें हैं बट बाद में तुमको कंफ्यूजन होगा. Many people use the word program or software equivalently. यानी प्रोग्राम बोलो सॉफ्टवेयर बोलो एक ही बात है, बट दोनों में ना एक सटल डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ. चलो एक ये सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन लिखते हैं. लिखो जरा. A software is simply a collection of programs which performs one particular task. ठीक है, सुनो. अभी क्या है ना कि कैसा है ना कि जब कोई प्रोग्राम छोटा होता है, ओके, जब कोड छोटा होता है ना तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्राम. ओके, सॉफ्टवेयर हम कब बोलते हैं, तो जैसे डेफिनेशन बोलता है सॉफ्टवेयर is simply a collection of programs which performs one particular task. So in a software there are small programs, and these programs together perform one particular task. Now if you ask me examples of softwares, I will say every app on your cell phone is a software. WhatsApp bolo, Instagram bolo, Facebook bolo, Gmail bolo, Google Maps bolo, everything is a software. And in this particular software there will be small programs, and these programs together will perform one particular task. So software is simply a collection of programs. I hope you understood this. Now the next important software which we need to understand over here, by the way, now we'll be studying some important softwares. Okay, so one important software which we need to understand over here is compiler. अब मुझे एक बात बोलो, तुम्हारा कॉलेज शायद मुझे लगता है मंडे को स्टार्ट हुआ या प्रीवियस मंडे स्टार्ट हुआ. व्हेन डिड इट स्टार्ट? दिस मंडे और प्रीवियस मंडे? This Monday, sir. सो तुम्हारे कॉलेज में अभी तक तुमने वर्ड सुना है क्या, कंपाइलर या कंपाइलिंग या कंपाइलेशन, ये वर्ड सुना है क्या प्रैक्टिकल्स में? PDF कंपाइल करके भेज दो. हाँ, बाय द वे अभी कॉलेज ऑफलाइन ही है ना, तो ऑनलाइन है? Offline. ठीक है, तो तुम शायद कंप्यूटर लैब भी गए होंगे, तो वहां शायद तुमने वर्ड सुना रहेगा कंपाइलर या कंपाइलेशन या कंपाइलिंग. अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो ध्यान से सुनो. ओके, एक काम करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे. तो चलो हेडिंग दो कंपाइलर और इसका डेफिनेशन लिखेंगे. लिखो. अ कंपाइलर इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम. अ कंपाइलर इज इटसेल्फ अ प्रोग्राम a compiler is itself a program which converts our program written in high level language ब्रैकेट में लिखो सोर्स कोड, क्लोज द ब्रैकेट. मैं फिर से बोलता हूं, compiler is itself a program which converts our program written in high level language to machine language. ब्रैकेट में लिखो ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. हाँ, अभी समझो. सर हाँ बोलो.
सोर्स कोड कहाँ पे लिखना था? सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज के बाद, ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज के बाद. A compiler is itself a program which converts our program written in high level language to machine language, और मशीन लैंग्वेज के बाद ऑब्जेक्ट कोड. अच्छा, अभी समझो, I can speak only English, I can understand only English, you can understand only French, you can speak only French. Now if we want to communicate with each other, what do we need in between? फटाफट बोलो, come on. Translator. ट्रांसलेटर. And that translator is a compiler. क्या होता है ना, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो हम अपने प्रोग्राम में ऐसे स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ऐसे. बट ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मुझको समझ में आता है, तुमको समझ में आता है, बट कंप्यूटर को नहीं समझ में आता है. कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली वंस एंड जीरोस. तो अपने लिए जो है ना x इक्वल टू a प्लस बी, वो कंप्यूटर के लिए ये होगा, ये. ओके, सो नाउ वी नीड अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन which will convert the high level language to machine language, and that translator is the compiler. So compiler is itself a program which will convert our high level language to machine language. अब अगर तुम मुझको पूछते हो कि सर कंपाइलर क्या क्या काम करता है, तो एक तो वो ऑब्वियसली ट्रांसलेटिंग का काम करता है. ओके, बट ट्रांसलेशन के पहले वो एक और काम करता है, और वो होता है एरर चेकिंग. अब एरर चेकिंग का मतलब क्या होता है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का सिंटैक्स होता है. आई रिपीट, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिंटैक्स. सिंटैक्स का मतलब होता है ग्रामर. फॉर एग्जाम्पल, अगर सी प्रोग्राम तुम लिख रहे हो ना, तो आफ्टर मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स तुमको इधर एक सेमीकोलन डालना पड़ेगा. अगर तुमने सेमीकोलन नहीं डाला ना, तो दिस विल बी एन एरर. तो इसको बोलते हैं सिंटैक्स. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, दिस इज द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज. तो कंपाइलर क्या करता है, पहले चेक करता है कि कोई प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है क्या. अगर सिंटैक्स एरर नहीं है तो ही वो ट्रांसलेशन करता है. तो पहले वो करता है एरर चेकिंग, फिर वो करता है ट्रांसलेशन. ओके, अब याद करो, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट पहले मैंने तुमको बोला था कि मशीन लैंग्वेज का एक एडवांटेज है. मैंने तुमको बोला था एडवांटेज में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. एक्चुअली मैंने गलती से नेक्स्ट लेक्चर बोला, अभी वो एडवांटेज आ जाएगा. क्या तुमको याद है वो एडवांटेज क्या था मशीन लैंग्वेज का? मैंने बोला था इसको रट. डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर. वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड, वेरी गुड. सो मशीन लैंग्वेज का एक एडवांटेज ये है कि इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. क्या तुम मुझको बोल सकते हो कि एडवांटेज का क्या मतलब है? भी ये मैंने तुमको इतना सिखाया, उसके बाद बोल सकते हो कि एडवांटेज का क्या मतलब है, कि मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. कंप्यूटर फटाक से उसे प्रोसेस कर सकता है. ये जो तुमने बोला फटाक को एक्सप्लेन करोगे? रैम के स्पीड को. नहीं, देखो बात सिंपल है. आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश. डू वी नीड अ ट्रांसलेटर इन बिटवीन? नो, वी डोंट. ओके, सो देखो, कंपाइलर का जरूरत कब पड़ता है? जब तुमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है. बट इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन लैंग्वेज, ओके, तो तुमको कंपाइलर का क्या जरूरत? क्योंकि कंप्यूटर तो डायरेक्टली उसको समझ में आ जाता है. सो कंपाइलर वाज नॉट रिक्वायर्ड इन 1960s 1965 बिकॉज इट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. इन फैक्ट इवन टुडे, मेरी बात ध्यान से सुनना, इवन टुडे सम स्मॉल प्रोग्राम्स जो स्पेस शटल्स में यूज होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होते हैं, they are still coded in machine language. क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, ये जो स्पेस शटल्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, here even a split second is important. एक माइक्रो सेकंड से फर्क पड़ सकता है. ओके, तो ऐसे जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स रहते हैं ना, वो अभी भी मशीन लैंग्वेज में फीड होते हैं टू द कंप्यूटर. ऑलराइट, तो ये उसका एडवांटेज है मशीन लैंग्वेज का. नाउ आई सजेस्ट तुम ये इतना कॉपी करो, यहाँ से लेके ये इधर तक इतना, और फिर अच्छा पहले इतना कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी टिल हियर. ठीक है, फिर इसके नीचे लिखो कंपाइलर परफॉर्म्स एरर चेकिंग एंड ट्रांसलेशन. नंबर 1 एरर चेकिंग, नंबर 2 ट्रांसलेशन. ठीक है, नाउ गिव 2 more headings. लिंकर, लोडर. कम ऑन,
give two more headings, linker, loader, and preferably use colored pens like this. आज के बाद है ना, जहां जहां मैं कलर्स यूज करूंगा तुम भी यूज करना, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ यूजिंग कलर्स इज टू मेक अवर नोटबुक मोर अंडरस्टैंडेबल. वी हैव टू यूज द कलर्स इंटेलिजेंटली. इसका क्या मतलब है? अभी देखो मैंने ऐसा लिंकर में ऐसा कलर यूज किया है, तो ये लिंकर एक सॉफ्टवेयर है. तुमको क्या लगता है क्या काम करेगा? कम ऑन टेक अ गेस, ये क्या काम करता होगा? It will link multiple codes. हाँ, वेरी गुड. तो देखो एक कलर से तुमको थोड़ा समझ में आ गया. ओके, एनीवे गिव द टू हेडिंग्स, लिंकर एंड लोडर. ठीक है, अब सुनो. अभी लिंकर है ना, इसका डिटेल्स में तुमको थोड़ा बाद में समझाऊंगा. अभी तुमको इतना डिटेल में नहीं समझेगा. फॉर टाइम भी थोड़ा ऊपर से बताता हूँ. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर? अभी तुमने नोटबुक में लिखा है, नोटबुक में देख के बता सकते हो. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर? बोलो. Simple collection of a program. हाँ, a software is a collection of programs. ठीक है. अभी क्या होता है ना, आज के बाद मैं बहुत बार एक वर्ड यूज करूंगा कि एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिंग अ सॉफ्टवेयर, या मैं बोलूंगा रनिंग अ प्रोग्राम, रनिंग अ सॉफ्टवेयर. तो रनिंग का मतलब होता है, एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है मेकिंग द प्रोग्राम डू इट्स वर्क. ओके, मेकिंग द सॉफ्टवेयर डू इट्स वर्क. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. ओके, एंड प्लीज आंसर माय क्वेश्चन सो दैट यू नो द आवर लेक्चर इज मोर इंटरैक्टिव. तुम सबके सेलफोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है, बट राइट नाउ, आई रिपीट, राइट नाउ, आर यू यूजिंग व्हाट्सएप? यस और नो? फटाफट बोलो, यस और नो. No. नो नो नो. तो इसका मतलब है राइट नाउ व्हाट्सएप इज नॉट रनिंग ऑन योर सेलफोन, इट इज नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन योर सेलफोन. ठीक है, अब वो रन नहीं हो रहा है, भले वो इंस्टॉल्ड है. तो उसी तरह से क्या होता है, एक सिंपल बात समझो. ओके, तुम्हारा सेलफोन है, समझो तुम्हारे सेलफोन का होम स्क्रीन है, इसमें बहुत सारे एप्स है. जब तुम किसी आइकन पे क्लिक करते हो, क्लिक, तो इसका मतलब तुमने उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया. अब वो अपना काम करेगा. ठीक है. अच्छा, अब मैं ये एग्जीक्यूशन वर्ड पे क्यों इतना फोकस कर रहा था? क्या होता है ना, ये जो एग्जीक्यूशन है ना सॉफ्टवेयर का, इसके लिए अपने को लिंकर एंड लोडर का जरूरत पड़ता है. लिंकर क्या करता है, इन एवरी सॉफ्टवेयर देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स. एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं. तो लिंकर क्या करता है, बिफोर द एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, it will link all the programs, it will join all the programs into one program, and after that the whole software will execute as one program. So the work of the linker is to combine all the individual programs into one program. So I hope that is clear. Any doubts? No, sir. अच्छा, अब लोडर के बारे में बात करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग, स्लाइटली डिफिकल्ट. तुमको अपने वर्ड्स में थोड़ा नोट्स लिखना है. वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना. ठीक है. लोडर भी एक सॉफ्टवेयर ही है. अब जो भी अगले 5 मिनट जो भी हम डिस्कस करेंगे ना, हम लोडर को समझने के लिए डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो तुमको ये डायग्राम याद होगा. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर. अभी जो ब्लॉक डायग्राम में जो मेमोरी यूनिट है ना, ये दिस मेमोरी यूनिट could be RAM or it could be hard disk. ठीक है. अभी it could be RAM, it could be hard disk. अभी समझो तुम्हारे सेलफोन की बात करें, सेलफोन की. समझो तुमने अपने सेलफोन के हार्ड डिस्क में एक सॉन्ग स्टोर किया है. ठीक है. अभी तुम समझो उस सॉन्ग को क्लिक करते हो एंड द सॉन्ग स्टार्ट्स प्लेइंग. अभी आज के बाद जब भी तुम सोचोगे ना, थिंक लाइक एन इंजीनियर, थिंक लाइक अ प्रोग्रामर, कि जब तुम वो सॉन्ग पे क्लिक कर रहे हो तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है ये तुमको समझना है. ठीक है. तो क्या होता है ना, मैंने तुमको बोला था कि एवरी सॉन्ग ऑन योर कंप्यूटर इज प्रेजेंट एज अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस. आई रिपीट, एवरी सॉन्ग ऑन योर कंप्यूटर इज प्रेजेंट एज अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस. तो जैसे ही तुम ये सॉन्ग को क्लिक करोगे ना, तो क्या होगा, हार्ड डिस्क से जो वंस एंड जीरोस है ना, वंस एंड जीरोस, वो इधर ऐसा फ्लो होगा. देखो यहाँ से ऐसा फ्लो होगा and it will come to the CPU. जो ones and zeros ना CPU में आएगा. अभी CPU पता है क्या करेगा, वो जो ones and zeros है ना, they will be converted to sound. I repeat, ones and zeros will be converted to sound. और उसके बाद that sound will be outputted. ये देखो, outputted to the speaker. तो मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे तुमने सॉन्ग पे क्लिक किया, ones and zeros इधर आया, CPU ने उसको साउंड में कन्वर्ट किया और फिर वो इधर आ गया.
ऑलराइट, स्पीकर पे आया तो अब तुमको सॉन्ग सुनने आ रहा है। एनी डाउट्स हियर? No, अच्छा sir. अच्छा, अभी होता क्या है ना, होगा क्या, ध्यान से सुनना। हाँ, if the song is transferred from hard disk to CPU, I repeat, if the song is transferred from hard disk to CPU, then you will hear the song with breaks in it. तुम बोलोगे ब्रेक मतलब क्या? तो ब्रेक का मतलब, जब हम सेल फोन पे बात करते हैं और सिग्नल क्लियर नहीं होता है तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं? तेरा आवाज Lag हो रहा है, disturbance. हम बोल रहे हैं तेरा आवाज कट रहा है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। तो वो जो इफेक्ट है ना, वो तुमको इधर इधर सुनने मिलेगा, वो तुमको इफेक्ट है ना इधर सुनने मिलेगा, तुमको सॉन्ग सुनाई देगा बट विद ब्रेक्स इन इट। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये मेरा कैडबरी क्वेश्चन है, क्या तुम मेरे को बोल सकते हो कि ये पूरे प्रोसेस में ये सॉन्ग में ब्रेक्स क्यों आ रहा है? ये पूरे प्रोसेस में सॉन्ग में ब्रेक्स क्यों आ रहे हैं? Because the CPU is working on the 0 and 1 machine language, which is coming from hard disk. नहीं, स्लाइटली बेटर आंसर। हार्ड डिस्क रैम नहीं है। वेरी गुड, यू आर ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा और इलैबोरेट करो। ऑलमोस्ट देयर। तुम सबको याद होगा कि हार्ड डिस्क हैज हाई एक्सेस टाइम, हार्ड डिस्क इज स्लोअर। तो होता क्या है ना, ये जो वंस एंड जीरोस इधर से फ्लो होके इधर आता है ना, हाँ, तो वो स्लोली आता है। और वो क्योंकि वो स्लोली आता है ना, तो इसीलिए सीपीयू ऑब्वियसली स्लोली सीपीयू में आ रहा है, तो स्लोली कन्वर्ट होगा, तो इधर तुमको ब्रेक से सुनने मिलेगा। एनी डाउट्स क्लियर? No, sir. Okay, so now in reality, in reality, the song is never directly transferred from hard disk to CPU. I repeat, in reality, the song is never directly transferred from hard disk to CPU. ऐसा होता ही नहीं है। हार्ड डिस्क एंड सीपीयू के बीच में, हार्ड डिस्क एंड सीपीयू के बीच में आता है रैम। होता क्या है ना, ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम ये सॉन्ग पे क्लिक करोगे ना, तुमने अपने फोन पे क्लिक किया, तो पूरा का पूरा सॉन्ग रैम में कॉपी हो जाएगा। तो अभी हार्ड डिस्क में तो सॉन्ग है ही, बट पूरा सॉन्ग रैम में कॉपी हो जाएगा। एंड देन while the song is being played, I repeat the word while the song is being played, the ones and zeros are transferred from RAM to CPU and not from hard disk to CPU. तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि RAM has low access time, RAM is very fast. तो ये रैम है ना, सीपीयू को फटाफट वंस एंड जीरोस भेजता है, तो इसीलिए अभी वो सॉन्ग में ब्रेक नहीं आता है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? अच्छा अच्छा, अभी हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? तो सबसे लास्ट हेडिंग क्या था जहां से मैंने शुरू किया? लोडर। तो अभी लोडर इधर बीच में कहाँ आया? तो जैसे कि मैंने बोला, वो कलर्स पे ध्यान दो, LOAD, लोड। So loader is itself a program which will load your song from hard disk to RAM. ये देखो, तो loader ये काम करता है, वो hard disk से RAM में song को load करेगा, and उसके बाद जो execution होगा वो RAM से होगा, वो hard disk से कभी नहीं होगा। And this concept is important because this concept is applicable for every damn thing, whether it is your C program, whether it is WhatsApp, everything. फिर एक बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ, आंसर भी देता हूँ। अभी तुम्हारे सेल फोन में व्हाट्सएप है जो तुम यूज नहीं कर रहे हो, हाँ। अब होगा क्या, जैसे तुम व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करोगे ना, क्लिक, ओके, तो तुम्हारा सेल फोन क्या करेगा, व्हाट्सएप का पूरा कॉपी तुम्हारे हार्ड डिस्क से रैम में ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद जब तुम चैट कर रहे हो तो वो व्हाट्सएप का कॉपी यूज होगा जो तुम्हारे रैम में है, वो नहीं जो तुम्हारे हार्ड डिस्क में है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एप्स, फॉर ऑल प्रोग्राम्स। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yes, sir. My suggestion is that you take 2-3 minutes, ये खाली इतना कॉपी करो, हार्ड डिस्क, लोडर, रैम, सीपीयू, and just write some notes in your own words अगर तुमको लिखना है। Come on. So take a few minutes and write this. और ये तुमको याद रखना है।
All right. So I hope you understood loader. So guys, that's it for today. Okay. So please revise all this for the next lecture. Now tomorrow there won't be any lecture. For the first week, there is only one lecture per subject. Now on Friday, you will have engineering graphics first lecture by Sanjay sir or Kirti sir. Okay. Either of these two will take the lecture. They will take the syllabus together. So again, if you have not paid the fees, you can still attend that first lecture and you can pay the fees on 10th of April. All right. And I will meet you again on next Wednesday. So till then, prepare this much and I hope you understood all this. So that's it for today. Thank you very much. Any doubts, you can ask me. Others, you can leave the meeting. And if you have any doubts, you can ask me. Any doubts? No doubts. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, most welcome. Bye bye. Take Thank care. you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye.